So, good afternoon class, this is Anil Kumar Singh, your computer teacher from Sibbal Singh Children Academy with your new point, or can say with your new chapter in your computer syllabus, that is called the MS Excel. This is your new session of the new chapter which is called the MS Excel. If we are talking about the MS Excel, basically it is the part of MS Office. Okay, MS Office means Microsoft Office, and this is the tool of MS Office. If we are talking about the extension file, nowadays the extension file of Excel.xlsx, this is the extension file of Excel, and before this the extension file of MS Excel XLS only. Firstly, we have to know what is MS Excel. So in a single line we can say the spreadsheet of the computer system is called MS Excel. Spreadsheet means where you can put your record in the tabular format like this. Okay, this, where some rows are available, some columns are available. Okay, and the combination of row and column, this is called cell. Okay, so this is the representation of the MS Excel which is showing in your MS Office part, and here you can put your record. The record may be your alphanumeric values or special character also, like these rows which is shown in the MS Excel is represented by A, B, C, D, E, etc. Okay, and the columns, if we are talking about the columns 1, 2, 3, 4. So if we are talking about the single cell, what is the name of this single cell? It is called the C1. C and 1. If we are talking about this cell, what is the name of this cell? Is called the D3. Also it is called the cell reference. Okay, so there are so many points where we will discuss in the PowerPoint presentation of the MS Excel topic, but firstly we have to know why Excel is used. चलो एक नॉर्मली टर्म में जाते हैं भाई. हम अपने अगर किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में बेसिकली तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. पहला, बिजनेस का डॉक्यूमेंट. दूसरा, बिजनेस की बैलेंस शीट. एंड तीसरा, बिजनेस का प्रेजेंटेशन. जैसे अगर मान लो मैं एक प्रोडक्ट को अपनी कंपनी में मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, तो उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने से पहले मुझे उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा. किसके सामने? पब्लिक के सामने. तो इन सब रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए MS ऑफिस बनाया गया था. MS ऑफिस ने स्टार्टिंग में बेसिकली अपने तीन ही टूल दिए थे. पहला दिया था वर्ड, दूसरा दिया था एक्सेल, और तीसरा दिया था पावर पॉइंट. वर्ड पे हम बात कर चुके हैं. डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए वर्ड का इस्तेमाल होता है. प्रेजेंटेशन देने के लिए PPT, पावर पॉइंट का इस्तेमाल होता है. ऐसे ही आपकी बैलेंस शीट, आपके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए एक्सेल का इस्तेमाल किया जाता है. ओके, सो here we go with the introduction of the MS Excel, how it is start, how it is used in your computer system. So go to the PowerPoint presentation of the MS Excel. Okay, let's go. अनिल कुमार फिर से आपके सामने प्रेजेंट है एक PPT प्रेजेंटेशन के साथ, जो कि हम बोर्ड सेशन से डायरेक्ट PPT प्रेजेंटेशन पे आए हैं MS Excel के बारे में बात करने, जो कि हमने थोड़ा सा बोर्ड पे डिस्कस भी किया था. व्हाट इज MS Excel? तो MS Excel is the spreadsheet software where you can record your data for the future use. Okay, can do the mathematical calculations and etc. So here I am going to give you the small introduction of the MS Excel with the help of PowerPoint presentation. So go with the first slide. In the first line written, if you can see,
एक्सेल इज़ द कंप्यूटर प्रोग्राम यूज टू क्रिएट द इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। एग्जैक्टली इसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ कि स्प्रेडशीट, एक्सेल शीट, ओनली शीट्स, ये तीनों ही नाम कहीं ना कहीं आपके एक्सेल शीट के ही होते हैं, चाहे उसे आज स्प्रेडशीट कह लीजिए, चाहे उसे एक्सेल शीट कह लीजिए, क्या ओनली शीट कह लीजिए, तो दीज ऑल नेम्स आर द सेम। और ये इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इसलिए है क्योंकि आप भाई कंप्यूटर पे इसे बना रहे हैं, ये आपके पेपर वर्क पे नहीं है। विद इन एक्सेल यूज़र कैन ऑर्गेनाइज डेटा, क्रिएट चार्ट एंड परफॉर्म द कैलकुलेशन। एग्जैक्टली जो एक्सेल बनाया गया था वो कैलकुलेशन के लिए ही बनाया गया था। मैथमेटिकल फार्मूले के यूज़ से आप बहुत सारी कैलकुलेशन को ईजी कर सकते हैं। मैथमेटिकल फार्मूले के यूज़ से आप बता सकते हैं, अपने डेटा को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आप उसे अपडेट कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल इन स्प्रेडशीट। Excel is the convenient program because it allows the user to create the large spreadsheet, reference information and it allows for the better storage of information. Exactly, आप जो अपने लार्ज अमाउंट का डेटा है जो कहीं ना कहीं मैथमेटिकल फॉर्म में होता है, आप उसे सिस्टम पे स्टोर कर सकते हो। आपके पास नंबर ऑफ़ कलीग्स कितने हैं, आपके पास नंबर ऑफ़ वर्कर्स कितने हैं, आपने कितने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया है, किस डिपार्टमेंट में आपने कितना खर्चा किया है, किस डिपार्टमेंट में आपने कम खर्चा किया है, किसकी सैलरी कब देनी है, किसकी सैलरी कब नहीं देनी है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ऑल द थिंग्स विच इज़ रिलेटेड टू अ बिजनेस विच इज़ इन फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल, यू कैन स्टोर इन द स्प्रेडशीट। ओके, इन द लास्ट ऑप्शन इस एक्सेल ऑपरेट लाइक अदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम्स। एग्जैक्टली जैसे वर्ड ऑपरेट होता है, जैसे पावर पॉइंट ऑपरेट होता है, वैसे ही एक्सेल को ऑपरेट किया जाता है। आप कैसे, आप स्टार बटन पे क्लिक करते हैं, ऑल प्रोग्राम्स का आपका ऑप्शन आता है, ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं, उसमें आपको सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कहीं ना कहीं आपको शो हो जाएगा एक सिंगल टूल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ओके, आई थिंक इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग सिस्टम जब ऑपरेट करते हैं तो ईजिली होता है कि बहुत सारे, यानी सारे के सारे प्रोग्राम्स आपके स्टार्ट बटन में दिए होते हैं, जो आपको डेस्कटॉप पे शो भी ना हो रहे हो, वो भी प्रोग्राम आपको स्टार्ट बटन पे दिए होते हैं। तो ऑल प्रोग्राम्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शो होगा। उन्हीं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक टूल है उसका, ठीक है। तो हैज़ मैनी ऑफ द सेम फंक्शन एज शॉर्टकट ऑफ MS प्रोग्राम। MS प्रोग्राम का आप शॉर्टकट भी बना सकते हैं। आप अगर विंडोज़ पे जहाँ पे आपका डेस्कटॉप शो होता है वहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक के आप न्यू ऑप्शन में जाएंगे तो भी आपको वहाँ पे शो हो जाता है MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेडशीट। अदरवाइज देयर इज एन अदर ऑप्शन, यू कैन क्लिक ऑन द सर्च बटन एंड जस्ट राइट द XLS या लिख दीजिए एक्सेल, EXEL। तो कहीं ना कहीं आपके सामने एक्सेल की जो शीट है या एक्सेल का जो प्रोग्राम है वो सामने आपके आ जाएगा। ओके, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ओके, ओवरव्यू की हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो मैंने बोर्ड पे बताया था, फिर भी बता देता हूँ, जो एक्सेल है वो एक रो एंड कॉलम की शीट होती है। देयर आर सम रोज विच इज़ डिनोटेड बाई फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 1 2 3 4 जो लिखा हुआ है हेयर, दीज आर द रोज, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, दीज आर द रोज। ओके, एंड दीज आर द कॉलम्स। ओके, इनके इंटरसेक्शन से एक जो ये आपका रेक्टेंगुलर फॉर्मेट बना है, इसको हम लोग सेल बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक रिप्रेजेंटेशन है, नॉर्मल सा एक एक्सेल का रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पे आप लोग पहचान पाएँ कि एक्सेल शीट होती कैसी है। तो क्या लिखा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंसिस्ट ऑफ वर्कबुक्स, विद इन ईच वर्कबुक देयर इज एन इन्फाइनाइट नंबर ऑफ वर्कशीट। सो दीज आर द शीट्स, जो नीचे आपको दिखाई दे रही है ना, दीज आर द शीट, शीट 1, शीट 2, शीट 3। ये कितनी भी आप बढ़ा सकते हैं, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है ना, आप उतनी शीट्स बढ़ा सकते हैं। इन्हीं वर्कशीट्स का कलेक्शन वर्कबुक कहलाता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला ना, एक्सेल शीट, शीट्स को आप लोग वर्कशीट भी बोल सकते हैं। शीट्स, एक्सेल शीट, वर्कशीट, स्प्रेडशीट, तो दिस इज द कलेक्शन ऑफ स्प्रेडशीट कॉल्ड वर्कबुक। नेक्स्ट लाइन है, ईच वर्कशीट कंटेन द कॉलम्स एंड रोज। हम बिल्कुल बात कर चुके हैं, दीज आर द रोज एंड दीज आर द कॉलम्स। वेयर कॉलम एंड रो इंटरसेक्ट इज कॉल्ड सेल। बिल्कुल, जैसे ये जो सेल D5 लिखा हुआ है, ये एक सेल है, ठीक है। आप लोगों ने को एक चीज़ और बता देता हूँ, एक सेल रेफरेंस नाम का भी पॉइंट आता है। सेल रेफरेंस के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन जो सेल रेफरेंस है वो कहीं ना कहीं सेल को डिफाइन करता है कि ये कौन सी सेल है। जैसे ये सेल D5 है, वाई इट इज़ D5, जस्ट बिकॉज द कॉलम नंबर इज D एंड रो नंबर इज 5, दैट्स वाई D5। अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, A1, ठीक है। तो इस तरीके से सेल रेफरेंस किया जाता है, सेल का एड्रेस होता है वो कहीं ना कहीं डिनोट किया जाता है किसी नाम से, तो दैट इज़ कॉल्ड सेल रेफरेंस, ठीक है।
द टैब्स एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन रिप्रेजेंट डिफरेंट वर्कशीट। मैंने इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। दीज आर द शीट्स जो कि सबसे नीचे हमें दिखाई दे रही हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, यानी बाय डिफ़ॉल्ट आपसे कहा जाए 2007 वर्जन में तो कितनी शीट्स शो हो रही हैं? दे आर 3 शीट्स। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, ऑफिस बटन। ऑफिस बटन की हम लोग बात करें तो लेफ्ट कॉर्नर पे सबसे ऊपर ऑफिस बटन दिया होता है, जिससे आप अपने एक्सेल के बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। लाइक न्यू, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा मैं स्ट्रेच कर देता हूँ, देखो दिखाई दे रहा होगा आपको सबसे ऊपर से, न्यू, ओपन, शेयर, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश एंड क्लोज। ओके, दीज आर द ऑप्शन अवेलेबल। बेसिकली आप इन सभी का इस्तेमाल करते हैं जो स्टार्टिंग में 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। प्रिंटर आपके घर पे नहीं होता इसलिए हम लोग प्रिंट कमांड कम ही यूज़ करते हैं, पर हाँ 4 ऑप्शंस हम बेसिकली यूज़ करते हैं, जिसमें आपका न्यू है, ओपन है, सेव और सेव एज है। न्यू, हमें अगर किसी न्यू वर्कबुक की रिक्वायरमेंट होती है तो वी कैन क्लिक ऑन द न्यू ऑप्शन। ओपन की बात एग्जिस्टिंग वर्कबुक जो पहले से बनी हुई है, सिस्टम पे कहीं स्टोर है, अगर आपको उसकी रिक्वायरमेंट है यू कैन क्लिक ऑन ओपन। सेव, किसी भी फाइल को जो आप लिख रहे हैं, जो आप डेटा बना रहे हैं उसको सेव करने के लिए सेव। सेव है किसी पुराने डेटा को अपडेट करने के बाद नए नाम से सेव करने के लिए या नई लोकेशन पे सेव करने के लिए वी कैन यूज़ द सेव एज ऑप्शन। ओके, सेव और सेव एज में फ़र्क होता है, ठीक है। अपडेशन के बाद हम लोग नहीं चाहते कि पुराने डेटा में कोई भी चेंजेस हों, फिर भी हमारी नई जो फाइल है वो अपडेशन के साथ सेव हो जाए, तो वी कैन यूज़ द फंक्शन सेव एज। प्रिंट के बारे में सभी जानते हैं। प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपने कभी इस पर काम नहीं किया है, ठीक है। आपको भेजना भी नहीं है, आपको प्रिपेयर भी नहीं करना, आपको पब्लिश भी नहीं करना। हाँ, एट लास्ट क्लोज। क्लोज कहीं ना कहीं आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, आप चाहें तो यहाँ से क्लोज कर सकते हैं अपनी वर्कबुक को, आप एग्जिट करके इस एक्सेल से बाहर निकल सकते हैं, या राइट अप साइड पे जहाँ पे आपके मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज के ऑप्शन दे रखे हैं, रेड बटन में एक्स का एक सिंबल होता है, आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो वर्कबुक है, जो शीट है वो क्लोज हो जाएगी। ओके, आई थिंक कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। आपको यहाँ पे शॉर्टकट्स भी दे रखे हैं, जैसे ओपन करने के नई फाइल के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल N का इस्तेमाल करते हैं, एग्जिस्टिंग फाइल के लिए कंट्रोल O ओपन, सेव के लिए कंट्रोल S और सेव एस के लिए सिर्फ F12, ठीक है। दीज आर का शॉर्टकट। प्रिंट के लिए कंट्रोल P दे रखा है शायद, हाँ दे रखा है, ठीक है। तो दीज आर द ऑप्शन जो कि हम लोग इस्तेमाल करेंगे आपके MS एक्सेल में। ओके, ऑफिस बटन के बाद रिबन। रिबन इज द एरिया वेयर द शॉर्टकट टूल्स आर अवेलेबल इन अ ग्रुप, ठीक है। रिबन जो एरिया होता है वहाँ पे आपके शॉर्टकट टूल्स अवेलेबल होते हैं एक एक ग्रुप में। लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने आपको कट करके भी यहाँ पे दिखाया हुआ है। दिस इज़ द रिबन, यहाँ से लेकर यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये रिबन एरिया है। अब ये जो एरिया है, जैसे क्लिपबोर्ड है, क्लिपबोर्ड इज़ द ग्रुप एंड दीज आर द शॉर्टकट्स, कट, कॉपी, पेस्ट, दीज आर द शॉर्टकट। ऐसे ही आपका फॉन्ट इज द ग्रुप एंड बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, इंक्रीज, डिक्रीज, कलर, दीज आर द शॉर्टकट्स, दीज आर द ऑप्शंस विच इज अवेलेबल इन अ ग्रुप। तो आपसे कभी पूछा जाए एग्जाम में कि इन विच ग्रुप कट, कॉपी, पेस्ट इज अवेलेबल, तो यू कैन से द क्लिपबोर्ड ग्रुप इज। आपसे कहा जाए वेयर द बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन इज अवेलेबल इन द होम टैब, तो यू कैन से द फॉन्ट ग्रुप। तो दीज आर द क्वेश्चंस विच मे बी पॉसिबल कि आपके एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाएं। दैट्स वाई बी प्रिपेयर फॉर ऑल द थिंग्स। तो रिबन का अगर हम कहें तो दिस इज द एरिया वेयर द ग्रुप्स आर अवेलेबल एंड द शॉर्टकट फॉर्म या ऑप्शंस आर अवेलेबल इन अ सिंगल ग्रुप, ठीक है। तो आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो दीज आर द कमांड्स और वो ऊपर जो आपके ग्रुप्स हैं। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। Working with a cell. Working with a cell means you can put any kind of data in the cells, like you can put the arithmetic value, you can put the numeric value, you can put the arithmetic and numeric value both in the single cell. Like if you are studying in the class 10th A या 9th B या 8th C, so you can put the same value in the these value in the same cell कि 9A को आप single cell में लिख सकते हैं, 10th B को आप single cell में लिख सकते हैं, 8th C को आप single cell में लिख सकते हैं। क्लियर। तो सेल की यहाँ पे बात हो रही है, किसी सेल को कॉपी करना है तो यू कैन कॉपी विद द शॉर्टकट कमांड कंट्रोल+C एंड यू कैन पेस्ट एनीवेयर इन द शीट
with the shortcut Ctrl+V. Otherwise there is another option, you can right click on the data, यानी जहाँ पे डैशन लिखा हुआ है आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा, क्लिक ऑन कॉपी, और जहाँ पे भी आपको उसे पेस्ट करना है, जैसे इन्होंने 4th सेल में पेस्ट किया है, B4 में पेस्ट किया है, तो वहाँ जाके राइट क्लिक करेंगे तो पेस्ट का ऑप्शन आएगा, क्लिक ऑन पेस्ट, तो आपका डेटा यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा, यानी आपका डुप्लीकेट डेटा आ जाएगा। तो यही कॉपी पेस्ट का एक प्रोसीजर है। बेसिकली आप सब ये कर चुके हो, लेकिन फिर भी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक्सेल जो है वो बाकी टूल से थोड़ा सा अलग होता है। कभी कभी यहाँ पे कमांड्स काम नहीं करती हैं, दैट्स वाई आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है। ओके, वर्किंग विद द सेल में आपको देखो ऑप्शन में भी उसने क्या किया है, अब कॉपी पेस्ट नहीं किया है, अब उसने किया है कट एंड पेस्ट। कट एंड पेस्ट का मतलब समझते हैं ना, जब डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है तो हम कट एंड पेस्ट करते हैं। अब इन्होंने ऑसम को A2 से कट किया है और पेस्ट किया है C4 में, तो आप लोग गौर कर रहे होंगे जो सेकंड एरिया है, यानी यहाँ से इन्होंने जब कट किया था ऑसम को और उसके बाद जब यहाँ पेस्ट किया तो इस एरिया में वो वर्ड नहीं है। इट मीन्स ये वाला जो ऑसम वर्ड था अब वो यहाँ मूव कर गया है। तो किसी भी डेटा को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करने के लिए जो शॉर्टकट यूज़ होता है या जो कमांड्स यूज़ होते हैं वो कट और पेस्ट होते हैं। और जब डुप्लीकेट डेटा बनाना होता है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट का। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ओके, फॉर्मेटिंग। अब फॉर्मेटिंग की हम लोग बात करें तो बेसिकली हम लोग अभी तक जितने भी टूल्स पढ़ चुके हैं MS ऑफिस में, सब में फॉर्मेटिंग सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं होता, सब में फॉर्मेटिंग में एक ही बात कही जाती है। अब मैं फर्स्ट वाले की बात करूं तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इसका कलर चेंज कर देता हूँ, आई थिंक आपको शो ना हो रहा हो, ठीक है, अब शो हो रहा है, ओके ठीक है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है बोल्ड, इटैलिक एंड यू फॉर अंडरलाइन। तो दीज आर द ऑप्शंस विच इज़ अवेलेबल इन द एक्सेल फॉन्ट एरिया, जहाँ पे आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। पर किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन करने के लिए फर्स्टली यू हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट। जितना भी टेक्स्ट है उसे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। दीज आर द ऑप्शन फॉर द फॉन्ट स्टाइल, किसी भी स्टाइल में आप लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है अल्गेरियन, ठीक है, एजेंसी GB, कॉम्बेरिया, कैलेब्री। तो दीज आर द वर्ड्स विच इज़ यूज्ड इन एब्रिड, तो वो उनके एब्रिड के वर्ड हैं। यहाँ पे होते तो भोजपुरी, हिंदी, तेलुगु, तमिल, और भी हो सकता है पंजाबी, मलयालम, सो मैनी लैंग्वेजेस आर देयर और प्रिटी लैंग्वेजेस आर देयर। तो किसी भी ये वर्ड्स उन्होंने, जिनने ये डेवलप किया है, उन्होंने अपने हिसाब से स्टाइलिंग दी है, आप अपने हिसाब से स्टाइलिंग दे सकते हैं। क्लियर? उसके अलावा जो फॉन्ट है, फॉन्ट में वैसे ऑप्शंस और भी होते हैं। फॉन्ट साइज़, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा वो छोटा सा, दिस इज़ योर फॉन्ट साइज़। आप अपने फॉन्ट का, अपने टेक्स्ट का साइज़ बढ़ा सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। यहाँ पे जो कॉर्नर में दे रखा है ये भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए होता है। किसी टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करिए और अगर जो कैपिटल आपको बड़ा वाला A दिखाई दे रहा है, फर्स्ट वन, अगर आप इस पर लगातार क्लिक करेंगे तो वो टेक्स्ट आपका इंक्रीज़ होगा, साइज़ उसका इंक्रीज़ होगा। छोटे वाले A पे क्लिक करेंगे तो वो वैसे भी डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए वी विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, देखिए टेक्स्ट साइज़ की यहाँ पे बात की गई है। दिस इज़ द टेक्स्ट साइज़ 8, 9, 10। बाय डिफ़ॉल्ट की अगर बात की जाए तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका टेक्स्ट साइज़ कितना रहता है, 11, लेकिन आप इसे डिक्रीज़ कर सकते हैं। मिनिमम कितना, 8 तक, और मैक्सिमम कितना, 72 तक, विच इज़ सोन इन द दिस ड्रॉप डाउन लिस्ट। अदरवाइज़ आप जो मैक्सिमम साइज़ दे सकते हैं वो ये होता है, ये आपका मैक्सिमम साइज़ होता है जो आप पुट कर सकते हैं MS वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट में, 2601। वैसे दिखेगा नहीं इसमें कोई वर्ड, क्योंकि बहुत 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 लार्ज हो जाता है, तो इसलिए वर्ड नहीं दिखेगा, पर आप यहाँ तक लिख सकते हैं। जैसे ही आप 2602 करेंगे वो एक्सेप्ट करना बंद कर देगा। क्लियर है? तो ये आपका फॉन्ट साइज़ है। यू कैन चेंज द फॉन्ट साइज विद द हेल्प ऑफ दिस ड्रॉप डाउन लिस्ट। अदरवाइज यू कैन पुट द बॉर्डर्स ऑफ द टेक्स्ट। दीज आर द बॉर्डर। देखो मैं गौर से दिखा देता हूँ, दिखाई दे रहा है? बॉटम बॉर्डर मतलब हमेशा जो टेक्स्ट है उसके नीचे बॉर्डर आएगा। टॉप बॉर्डर मतलब ऊपर बॉर्डर आएगा। लेफ्ट बॉर्डर लेफ्ट में आएगा, राइट में आएगा। नो बॉर्डर मतलब कोई बॉर्डर नहीं आएगा, सिर्फ डॉट डॉट आएंगे। ऑल बॉर्डर मतलब जितना भी आपने टेक्स्ट लिखा होगा ना, सब पे बॉर्डर्स आ जाएंगे। तो ये आपके बॉर्डर सपोर्ट करते हैं कहीं ना कहीं आपके दिए हुए एरिया में, दिए हुए टेक्स्ट में, दिए हुए एक्सेल शीट पे। जैसे आपने मान लीजिए 5 लोगों का स्टूडेंट रिकॉर्ड बनाया,
तो 5 लोगों का आपके सब जगह बॉर्डर चाहिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे, सिर्फ आउटलाइन चाहिए तो नीचे वाला क्लिक करेंगे, सिर्फ लेफ्ट में लाइन चाहिए तो लेफ्ट वाला क्लिक करेंगे। तो दीज आर द ऑप्शंस फॉर बॉर्डर। ठीक है, आई थिंक कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कलर। सबसे इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि आप लोग कलर फिलिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं हमेशा। तो देर आर सो मैनी कलर्स जो आप फिल कर सकते हैं। पहला वाला कलर होता है बैकग्राउंड के लिए, और दूसरा वाला कलर जहाँ ए लिखा है ये आपके टेक्स्ट के लिए। यानी आप लोग चाहें तो अपने सेल का कलर भी बदल सकते हैं, आप लोग चाहें तो उसमें लिखे टेक्स्ट का भी कलर चेंज कर सकते हैं। तो देर आर 2 ऑप्शंस, फर्स्ट वन इज़ फिलिंग द सेल एंड सेकेंड वन इज़ फिलिंग फॉर द टेक्स्ट, कि आप अपने को टेक्स्ट को किस कलर में चाहते हैं, आप अपने बॉर्डर को या अपने बैकग्राउंड को किस कलर में चाहते हैं। तो एक तरीके से वो बैकग्राउंड कलर के लिए होता है, जो पीछे बाल्टी दिखाई दे रही है आपको, बकेट है। क्लियर? हाँ भाई, बैकग्राउंड है तो पूरा बकेट भर के ही कलर लगेगा ना, टेक्स्ट में तो थोड़ा बहुत लगता है। पर आप भी देखो, आपके घर का जो बैकग्राउंड है या कहूँ आपके घर की जो वॉल्स हैं, उसको जब आप लोग पेंट करते हो तो ऐसा तो नहीं है ना कि 2 अक्षर लिखा और हो गई पेंट, नहीं होता ना। तो आप क्या करते हो, मार्केट से बकेट्स बनाते हो, तो वही बकेट्स यहाँ बनी हुई हैं। ओके, तो कलर्स की अगर बात की जाए तो यू कैन क्लिक ऑन द बकेट और अदरवाइज कैपिटल A। तो आप इन दोनों पे क्लिक करोगे और नीचे आपका जो बार्स दे रखा है वो कलर शो करता है। तो कलर बताता है कि हाँ इस समय आपका बैकग्राउंड का कलर क्या होगा या इस समय आपके टेक्स्ट का कलर क्या होगा। तो यू कैन चेंज द योर टेक्स्ट कलर। बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक रहता है, आप चाहो ब्लू, रेड, येलो, जो भी आपको पसंद हो आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, एडिटिंग फिल। अब देखो यहाँ पे एडिटिंग फिल 2 तरीके से दिखाई है। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ वर्ड के साथ। पहला लिखा हुआ है इन द लोअर राइट हैंड साइड कॉर्नर ऑफ द एक्टिव सेल एक्सेल इज फिल हैंडल। यहाँ पे जो ये दे रखा है ना, ये वाला जहाँ पे सिर्फ 5 लिखा हुआ है, तो उसने कहा कि अगर मुझे लगातार सेम वैल्यू चाहिए तो मैं ये नहीं है कि मैं हर बार 5 को टाइप करूँगा। क्या करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पे एकदम छोटा सा कॉर्नर दे रखा है ना, नीचे पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसको अपने माउस की लेफ़्ट क्लिक से नीचे की तरफ स्ट्रेच कर दूंगा जहाँ तक मुझे वो वैल्यू चाहिए। तो इन्होंने ये स्ट्रेच किया है, तो ऑल थिंग्स देखो हर जगह 5-5-5 लिखा है। ये होती है एडिटिंग फिलिंग। अब किस किस तरीके से फिल हो सकता है ये मैं आपको बताता हूँ, जो सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कर लेता है। आपने एक पैटर्न यूज़ कर रखा है तो वो उस पैटर्न फिलिंग को एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे आप टेबल लिखते हो 2 2 2 4 6 8 10, आपने सिर्फ लिखा 2 4 6, ठीक है, 3 आपके हो गए। तीनों को आपने सेलेक्ट किया, ठीक है, और लास्ट वाले में बस इस कॉर्नर वाले पॉइंट को पकड़ के नीचे खींच दिया। जैसे आप उसे नीचे ड्रॉप डाउन करेंगे, जब तक जहाँ तक करेंगे 10 तक 20 तक, तो वो 2 का टेबल लगातार लिखता जाएगा। यानी 2 का 4 का, देखो नीचे 4 का टेबल का एक एग्जाम्पल भी दिया है, आपको दिखाता हूँ। ये दिखाई दे रहा है आपको, देखो 4 और 8 उसने 2 लिख दिया, यानी उसे पता चल गया जो डिफरेंस है वो कितने का है, वो 4 का है। इट मीन्स ये 4 का टेबल है। तो उसने लास्ट वाले पॉइंट को जो आपको दिखाई दे रहा है, ये 8 के कॉर्नर में छोटा सा ये जो पॉइंट बना हुआ है जो स्क्वायर फॉर्मेट में है, इसको पकड़ के उसने नीचे की तरफ स्ट्रेच कर दिया। तो देखो 4 8 12 16 20 24 28 32, दिस इज द टेबल ऑफ 4। तो इस तरीके से आप जो अपने सेल्स हैं उन्हें फिल कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सिर्फ 4 और 8 इसका टेबल ही नहीं, आप लोग वीक डेज मतलब संडे मंडे ट्यूसडे, आप लोग मंथ के नाम, या आप लोग डेट की सीरीज, जैसे आज 11 सितंबर, आज क्या हो गया 20 सितंबर, फिर कल आप 21 सितंबर, बस 2 डेट लिखिए, उसके बाद उसे नीचे स्ट्रेच कर दीजिए जहाँ तक आपको चाहिए, तो वो डेट की भी सीरीज़ को ऑटो फिल कर लेगा। क्लियर? ये होती है एडिट फिलिंग। ये हर किसी एक्सेल शीट में हो जाती है, ठीक है, जहाँ भी आप वर्क करेंगे, चाहे आप घर पे हो, तो आपको बार बार रिपीट करके लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ उसे अगर टेबल लिख रहे हैं तो 2 बार लिखने के बाद स्ट्रेच कर दीजिए। सिंगल वर्ड आपको बार बार चाहिए, सिंगल पॉइंट बार बार चाहिए, तो एक ही सिंगल वर्ड पे ही स्ट्रेच कर दीजिए। डेट का नाम, मंथ का नाम चाहिए तो फर्स्ट मंडे लिखो, बाकी आप स्ट्रेच कर दो, सब आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट प्लीज। सेल रेफरेंसिंग देखो यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो मैं इसमें एक सेल रेफरेंसिंग की बात करी है, रिलेटिव। इसके अलावा 2 सेल रेफरेंसिंग और होती हैं, एब्सोल्यूट भी होती है, मिक्स भी होती है। इसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा जब मैं आपका इसका बिल्कुल डिटेल में आपको बताऊंगा। तो सेल रेफरेंसेस का मतलब सिर्फ इतना समझो, जो सेल में आप वर्क कर रहे हैं, जिस सेल में आप वर्क कर रहे हैं, उसे रेफरेंस करने के लिए जो वैल्यू लिखी जाती है वो आपकी सेल रेफरेंसिंग कहलाती है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको एक एग्जाम्पल दिया जाए कि हाँ कि डेटा जो है वो C कॉलम और 4th रो में लिखा जाएगा, तो जो आपकी सेल्फ रेफरेंसिंग की वैल्यू होगी वो कहीं ना कहीं D4 हो जाएगी। ठीक है, तो सेल रेफरेंसिंग के बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ समझ लीजिए कि सेल रेफरेंसिंग होता क्या है। 3 टाइप की होती है, रिलेटिव होती है, एब्सोल्यूट होती है एंड मिक्स्ड होती है।
चलिए फंक्शंस के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। तो एक इसमें डेट फंक्शन के बारे में बात की है, ठीक है। स्टार्ट डेट, एंड डेट एंड इंटरवल, 3 वर्ड यहाँ पे दिए हैं। फंक्शंस का मतलब ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम ना आपकी जो करंट डेट होती है सिस्टम पे, जो नीचे आपको कॉर्नर पे दिखाई दे रही है, उसको एक्सेप्ट कर सकता है। कैसे? सिर्फ आप कुछ वर्ड लिखोगे, कुछ टाइप करोगे तो वो उस तरीके से यूज़ कर सकता है। अदरवाइज़ आप लोग कोई प्रोग्राम बना रहे हो जिसमें आप चाहते हो, जैसे आपने स्कूल का एक डेटा बनाया है जिसमें नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ आ जाए, तो डेट ऑफ बर्थ को पुट करना कई तरीके होते हैं, जैसे 16/06/2001, तो ये भी एक तरीका है। इसके अलावा लिखेंगे 16-August-2001, ये भी एक तरीका है। या मंथ पहले लिखा जाएगा, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनके लिए फंक्शंस होते हैं। तो फंक्शंस के यहाँ पे क्या है, सिंटेक्स ऑफ डेट, स्टार्टिंग में ये फंक्शन ही है, आपको गौर से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये सिंटेक्स ऑफ डेट इफ, यहाँ पे डेट इफ फंक्शन की बात हो रही है, डेट की बात नहीं हो रही है, डेट इफ की बात हो रही है कि अगर ये डेट एप्लीकेबल हो तो फंक्शंस हो, ठीक। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है, वो चाहता है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ वाले दिन मुझे ना एक अलार्म मिल जाए अपने आप ही, तो वो डेट इफ फंक्शंस लगाए जाते हैं। जैसे आप लोग के फ़ोन में भी एक डेट इफ फंक्शन लगा हुआ है। आप लोग क्या करते हो, जो अलार्म सेट करते हो वो हमेशा कुछ घंटे बाद, कुछ टाइम बाद या कुछ देर बाद का, तो इसका मतलब ये है कि उस टाइम पे ही आपका फ़ोन फंक्शन करने लगे जैसे ही आपका जो दिया हुआ डेट और टाइम है वो जो करंट टाइम है उससे मैच कर जाए, ठीक है। ऐसे ये डेट इफ, स्टार्ट डेट, एंड डेट एंड इंटरवल, ठीक है। स्टार्ट डेट उन्होंने क्या कहा है, दे रखा है स्टार्ट डेट विद द विच यू वांट टू कैलकुलेट द डिफरेंस, यानी उन्होंने कहा है कि एक स्टार्ट डेट से लेकर एक एंड डेट के में कितना डिफरेंस है। जैसे ने क्या है, मेरी डेट ऑफ बर्थ कितनी है 23/6/1993, आज की डेट क्या है 1/1/2013, ठीक है। एक नॉर्मल सी डेट ले ली। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, तो क्या निकल के आया है, नंबर ऑफ डेज उसने बताए हैं इतने हैं, नंबर ऑफ मंथ्स बताए हैं इतने हैं, नंबर ऑफ ईयर्स बताए हैं। ये डेट इफ फंक्शन है, यानी कहीं ना कहीं डिफरेंसेस जो हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना टाइम हो गया है, ये सब बताएगा। नंबर ऑफ ईयर्स फिर से बताए हैं, मंथ्स ऑफ द ईयर 6 एंड डेज ओवर द मंथ 18, ये भी एक इंटरवल दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें शो करता है कि मैं कितने साल का हो गया हूँ। ये जो लास्ट वाला जो शो हुआ है ना, ये मुझे बता रहा है कि मैं कितने साल का हो गया हूँ। 19 ईयर 6 मंथ एंड 18 डेज, ये डेट ऑफ बर्थ के बाद मैंने अपनी एक एक्चुअल एज निकाली है। क्लियर है, ये मेरी एज नहीं है, प्लीज़ इस पर फोकस मत करिएगा, इतना छोटा नहीं हूँ मैं। चले नेक्स्ट, अब है सम इफ। सम इफ का मतलब है कि रिजल्ट तब हमें दे जब एक कंडीशन हम उस पर अप्लाई करें। जैसे कि मैंने एक दिया कि आप लोग पास तब होंगे जब इफ़ यू विल गेट द 70% मार्क्स। इफ़ यू डोंट हैव, मैंने आप सभी को टेस्ट मोड पे अधिकतर जो एग्ज़ाम दिए हैं वो मैंने आपका पासिंग मार्क अप्रॉक्स 65 या 70 रखा है। तो जब भी उस पर मैं सम इफ फंक्शन लगाता हूँ तो क्या शो करता है, अगर आप लोगों ने 70% प्लस मार्क्स गेन किए तो क्या लिखा होता है, कंग्रेचुलेशन या ब्रेवो, यू हैव पास्ड, ठीक है, यू आर पास। अगर आपके 70% से कम मार्क्स आते हैं तो क्या लिखा आता है, सॉरी यू आर फेल। तो यही होता है आपका सम इफ फंक्शन कि इफ़ यू विल कंप्लीट द कंडीशन, यू विल मैच द कंडीशन, तो रिजल्ट आएगा यस, अदरवाइज नो। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है उन्होंने एक एग्जाम्पल्स के थ्रू, ए में दे रखा है 3517394 सम वैल्यूज़ हैं, बी में भी कुछ वैल्यूज़ पुट कर रखी हैं उन्होंने, ठीक है। फंक्शन क्या दिया है कि सम इफ A1 से लेकर A7 जो भी हैं, A1 से लेकर A7 जितना भी ये है, ठीक है, इसकी में जितनी भी वैल्यूज़ हों वो लेस देन 5 कितनी है, ये उसने फाइंड करने को कहा है। तो लेस देन 5 का क्या किया है, उसने सबको सम करना है। तो लेस देन 5 का मतलब 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 2 हो गया। 4 2 6 6 3 9 और 9 और 1 10, यही आंसर आया है। क्लियर है ना। सम इफ का मतलब है उसने एक कंडीशन दी है A1 से लेकर A7 तक जितने भी 5 से कम हैं उसका वो सम कर दे। थोड़ा मैं स्ट्रेच कर देता हूँ ताकि ईजिली दिखाई दे, ठीक है। उसने एक कंडीशन दी है कि जितने भी 5 से कम हैं, वैल्यूज़ कम हैं, उसको क्या कर दे, सम कर दे। इफ़ कंडीशन दे रखी है A1 से लेकर A7 तक। तो A1 से जो 5 से कम है वो 1 है, 3 है, 4 है और 2 है। 4 2 6 6 3 9 और 1 10, आंसर इज 10। ऐसे ही सम इफ A1 से A7 दे रखा है कि लेस देन 5 हो और B1 से B7 तक भी। तो B1 से B7 में भी क्या है, 3 है, 4 है, 1 है और 2 है, यही दे रखा है ना।
इसको अगर हम काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 9 9 और 2 क्या किया है इनने, ओके 4 3 9 9 एंड 10 12 मिस्टेकन है ये, ठीक है, यहाँ 12 आ जाएगा, गलत दे रखा है इसने, ठीक है। तो ये आपके फंक्शंस को फाइंड आउट करता है 10 और 6, अच्छा नहीं 4 3 और 4 6 4 एंड 5, ठीक है, ओके। तो दीज आर द फंक्शन जो कि हम अप्लाई करते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी सारी वैल्यूज़ को वो पुट करके आपके सामने आंसर दे दे, ठीक है। ये इफ़ कंडीशन है, इफ़ कंडीशन में आप लोग जो भी वैल्यू पुट करेंगे अगर उस कंडीशन को वो मैच करता है तो उसी को अप्लाई भी करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। फंक्शंस, बहुत सारे लॉजिकल फंक्शंस हैं, देखो इसमें अगर दे रखा है, अगर आप लोग रीड आउट कर पा रहे हैं तो वैल्यूज दे रखी है। फर्स्ट वन में इफ़ a2 इज़ ग्रेटर देन a2 इज़ लेस देन 5 तो पुट कर दे ट्रू अदरवाइज फॉल्स, a2 ग्रेटर देन 5 हो तो पुट कर दे ट्रू अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। इफ़ a2 इज़ इक्वल टू ट्रू और फॉल्स, ठीक। कहीं ना कहीं ये कंडीशन उसने पुट की है कब, जब एक लॉजिकल ऑपरेशन किया होगा जहाँ पे a2 की वैल्यू 5 दे रखी होगी, ठीक है, a2 की वैल्यू 5 दे रखी होगी। अब वो ना 5 से छोटा है ना वो 5 से बड़ा है, तो दोनों ही कंडीशन में उसने रिजल्ट क्या दिया फॉल्स। लेकिन यहाँ पे a2 की वैल्यू 5 के इक्वल है तो वैसे ही उसने आंसर दे दिया ट्रू, ठीक है। ऐसे ही उसने और भी कंडीशन, ये इफ़ फंक्शन उसने वर्क कराए हैं कि इफ़ a2 इज़ लेस देन 5 देन पुट 20 एंड 10, यानी जो वो 10 प्रिंट करा देगा लास्ट वाला, यानी हमेशा अगर आपका रिजल्ट रॉन्ग है तो वो सेकेंड ऑप्शन को प्रिंट कराएगा, अगर आपका रिजल्ट राइट है तो फर्स्ट ऑप्शन को प्रिंट कराएगा। तो ये चीज़ सोच के लिखिएगा। इफ़ a2 इज़ ग्रेटर देन 5 देन प्रिंट 20, ठीक है। देखो ग्रेटर देन इक्वस टू लगा दिया है, अब इक्वस टू वाली वैल्यू पुट हो गई है तो इक्वस टू 5 के इक्वल है ही है तो वो 20 को प्रिंट कराएगा। तो दीज आर द ऑप्शंस जो उसमें दिखाई दे रहे होंगे, या मैं आपको बता पा रहा हूँ कि जो ये जो इफ़ कंडीशन दे रखी है उसमें हमेशा जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो ट्रू होती है, यानी अगर वो वैल्यू ट्रू हो जाती है तो वो फर्स्ट वैल्यू को प्रिंट करेगा, अगर वैल्यू फॉल्स हो जाती है तो वो सेकंड वैल्यू को प्रिंट करेगा, ठीक है। बस यही दे रखा है इसमें और कुछ नहीं है स्पेसिफिक, ओके। काउंट इफ़ का मतलब होता है नंबर ऑफ वैल्यूज़ को काउंट करना किसी भी एरिया में। जैसे इसने फर्स्ट वन में क्या दे रखा है कि काउंट इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ तक, A1 से लेकर A10 तक, थोड़ा सा ये शो नहीं हो रहा है, A1 से लेकर A10 तक क्या काउंट करना है, वैल्यूज़ को काउंट करना है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ यानी 4 वैल्यूज़ हैं सिर्फ दिखाई दे रही, बाकी ये जो ब्लैंक स्पेसेस हैं या ये हैं ये इन सबको काउंट, स्पेशल कैरेक्टर को काउंट नहीं करेगा, ठीक है। बात क्लियर है। काउंट में सिर्फ और सिर्फ काउंट करता है वैल्यूज़ को, दीज आर द वैल्यूज़, 0 भी एक वैल्यू है अपने आप में, तो इन सबको काउंट किया। अब सेकेंड है काउंट ए, अब काउंट ए में वो वैल्यूज़ को, ऐसी वैल्यूज़ को भी काउंट करेगा जो कहीं ना कहीं स्पेशल कैरेक्टर हैं। ये हो गया, 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 यानी टोटल कितनी वैल्यूज़ हो गई, 8 वैल्यूज़ हो गई। तो 8 उसने आंसर प्रिंट कर दिया है, दिखाई दे रहा है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया। सिर्फ काउंट की अगर बात आएगी तो वो सिर्फ वैल्यू को प्रिंट करेगा जो कि एक कंप्लीट वैल्यू है, लेकिन काउंट ए की बात होगी तो वो सब वैल्यूज़ को काउंट करेगा, चाहे वो न्यूमेरिक वैल्यू हो, चाहे वो अल्फ़ाबेटिकल हो, चाहे वो स्पेशल कैरेक्टर हो, ठीक है, सबको काउंट करेगा। अब बात करते हैं थर्ड वन, काउंट ब्लैंक। ये यहाँ पे इन्होंने इक्वस टू नहीं लगाए हैं, सब में इक्वस टू लगेंगे, मतलब हमने ही नहीं लगाए हैं। नेक्स्ट वन इज़ काउंट ब्लैंक, तो यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेसेस को काउंट करेगा, दोनों ब्लैंक स्पेसेस हैं, दोनों को काउंट कर लिया। काउंट इफ़ A1 to A10 इज़ लेस देन 5 और इक्वस टू 5, जो लेस देन 5 हैं या इक्वस टू 5 हैं, बराबर हैं, उसको काउंट कर दें। तो लेस देन 5 क्या है 3, इक्वस टू 5 5, 2 वैल्यू हो गई, लेस देन 5 0, तो 3 वैल्यू हो गई, तो 3 उसने आंसर प्रिंट कर दिया, ठीक है। क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे नीचे ये मैंने पुट भी किया है, अगर आप लोग गौर करेंगे तो काउंट ए में ओनली सेल विद द कंटेनिंग नंबर्स, सेकेंड में क्या है काउंट सेल्स दैट आर नॉट एम्प्टी, मतलब उसमें कुछ ना कुछ फील्ड है, काउंट जो हमारे ब्लैंक एम्प्टी सेल्स हैं। और लास्ट वन में क्या है काउंट सेल इफ़ दैट मीट द कंडीशन, यानी जो कंडीशन दी है उससे मीट कर जाएगा तो उन सारी सेल्स को वो काउंट कर लेगा,
देखने से ही लग रहा है वो तो कोई ऑप्शन प्रॉब्लम ही नहीं है। तो दीज आर द मैथमेटिकल फार्मूलाज विच वी आर गोइंग टू यूज़ इन द एक्सेल। तो दीज आर द नॉर्मल एग्जाम्पल्स, बाकी मैं आप लोग जब लैब में आएंगे तो मैं कराऊंगा ही। सो टेक्स्ट फंक्शन की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे 3 केसेस दिए हैं। पहला है लोअर, अपर्स एंड प्रॉपर फंक्शन केस। लोअर में सारे वर्ड्स आपको लोअर केसेस में दिखाई दे रहे होंगे, अपर में सारे के सारे बड़े केसेस में दिखाई दे रहे होंगे, और प्रॉपर फंक्शन में आपको सेंटेंस केस दिखाई दे रहा होगा जिसमें फर्स्ट वर्ड लेटर है, कैपिटल है, लेटर तो है ही है, कैपिटल है, और बाकी सब स्मॉल लेटर में है। तो दीज आर द फंक्शन कैसे हैं? लोअर फंक्शन लोअर टेक्स्ट, लोअर और ब्रैकेट में टेक्स्ट, अपर फंक्शन अपर टेक्स्ट, और प्रॉपर फंक्शन प्रॉपर टेक्स्ट। दीज आर द फंक्शंस विच यू कैन यूज इन द MS एक्सेल टैब। तो ये फंक्शंस आप यूज़ करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। वैसे स्टार्टिंग में कुछ भी लिखा हुआ है, स्पेलिंग सेम है, लेकिन उनके वर्डिंग का कोई मैच नहीं है, कहीं पे S कैपिटल है, कहीं पे R कैपिटल है। तो इन फंक्शंस को अप्लाई करना है तो ऊपर यहाँ पे जो फर्स्ट वाली रो है यहाँ पे इन फंक्शंस को लगाइए और उसके बाद स्ट्रेच कर दीजिए, अपने आप देखेंगे सारे के सारे आंसर्स अपने आप आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। कुछ फंक्शंस हैं जिसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये ज़रूरी हैं, क्योंकि आपको मिलेंगे। नाउ फंक्शंस आपकी करंट डेट और टाइम को शो करता है। टुडे फंक्शन आपकी सिर्फ डेट को शो करेगा जो आपकी करंट डेट है। मोड फंक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे, ये हमेशा रिमाइंडर को शो होता है आफ्टर अ नंबर डिवीजन बाय द डिवाइजर। ये हमेशा बचे हुए रिमाइंडर को शो कर देगा, ठीक है, मॉड्यूल जिसे बोलते हैं। जैसे 3 से आप 7 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 1। तो यहाँ पे उसने 1 को शो कर दिया है। लेन की अगर बात करें तो रिटर्न द नंबर ऑफ द कैरेक्टर्स इन द टेक्स्ट स्ट्रिंग। जितनी भी आपकी जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं उसमें कितनी वैल्यूज़ हैं उसको शो करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा ANIL, जो कि मेरा बहुत ही सुंदर नाम है, इसमें कितने आपके स्ट्रिंग दिखाई दे, कितने कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं वो सब शो कर देगा। 4 हैं तो 4 यहाँ पे शो कर देगा वो। सम 2 और 3 मतलब सम के इक्वल टू सम के बाद आप डायरेक्टली अगर वैल्यू लिखते हैं तो वो डायरेक्ट आपका आंसर देता है। सम 9 और 12, सम 15 और 16 मतलब हमेशा उसे कॉमे से सेपरेटेड करेंगे। और एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, कि हमेशा किसी भी फॉर्मूले से पहले इक्वल का साइन लगता है, किसी भी फॉर्मूले से पहले, और टेक्स्ट लिखने के बाद उसे आप ब्रैकेट से क्लोज करते हैं, छोटी ब्रैकेट से। क्लियर है? और अंदर जितनी भी वैल्यूज़ आप पुट करेंगे उन्हें कॉमा से आप सेपरेट करेंगे, सिर्फ कॉमा से, ना सेमी कॉलन से ना कॉलन से, किसी भी चीज़ से नहीं, सिर्फ और सिर्फ कॉमा यूज़ होगा वहाँ पे, ठीक है, ना ये वाला कॉलम और ना ये वाला कॉलम। क्लियर? तो दीज आर द फंक्शंस नॉर्मली यूज्ड इन योर MS एक्सेल टाइम। देयर आर सम शॉर्टकट कीज़। आप चाहें तो इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं, आप चाहें तो वैसे वीडियो देख ही रहे हैं, वैसे स्नैपशॉट भी ले लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो दीज आर द शॉर्टकट कीज़ स्टार्टिंग विद द F2 एंड एड विद द कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्सक्लामेटरी साइन, ठीक है। तो अगर आप लास्ट की कुछ शॉर्टकट कीज़ को छोड़ भी देंगे, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कंट्रोल Z तक आपको सारी की सारी शॉर्टकट कीज़ याद होनी चाहिए। क्लियर है? सारी शॉर्टकट कीज़, एक भी छोड़ना नहीं है आपको बीच में, चाहे कंट्रोल A से लेकर जो कंट्रोल Z तक हैं या X तक हैं, वो सारी शॉर्टकट कीज़ रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल होती हैं, रेगुलर बेसिस पे, MS वर्ड में भी, एक्सेल में भी, पावर पॉइंट में भी। सो आप इन शॉर्टकट कीज़ को याद करेंगे, कोशिश और भी करेंगे क्योंकि मैं आपको शॉर्टकट कीज़ का PDF भी भेजूंगा जल्दी ही। तो अभी फ़िलहाल आप ये याद करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ऑल द डियर स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत ही केयरफुली, बहुत ही पेशेंसली सुना, और कोशिश करिएगा ये सारे के सारे टास्क आप पढ़ भी लें, क्योंकि तुरंत पढ़ा हुआ और फिर उसको रिवाइज़ करने से आपको जो पढ़ लेंगे वो याद हो जाएगा। बाकी तो मैक्सिमम टास्क आपका लैब का ही है, तो आपके घर में अगर सिस्टम हो तो प्लीज़ डू प्रैक्टिस, नहीं है तो मोबाइल फ़ोन में आप सिर्फ उसके फंक्शंस को पढ़ते रहिए, कोशिश करिए कि उन फंक्शंस को आप अच्छे से पढ़ लें। ओके, तो क्लास दिस इज़ फॉर इट फॉर टुडे, विल सी यू सून एंड थैंक यू सो मच, कीप से योरसेल्फ सेफ, कीप स्माइलिंग ऑलवेज, थैंक यू।